Welcome to home classes, 11th class, English, jkbose, prose, Unit 4, Quality by Galsworthy. About author Galsworthy, 14 August 1867, 31st January 1933, was an English novelist and playwright. Notable work include The Thirsty Saga, 1906-1921, and its sequel, A Modern Comedy, and End of the Chapter. He won the Nobel Prize in Literature, 1932. John Galsworthy 14 अगस्त 1967 को पैदा हुए और 31 जनवरी 1933 को दुनिया से चल बसे। वो इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे और ड्रामा निगार थे। उनके जो नुमाया काम हैं वो हैं द फर्स्टी सेगा, जो उन्होंने 1906 से लेकर 1921 तक लिखा, और इसके जो स्क्वेल्स हैं जैसे मॉडर्न कॉमेडी, एंड ऑफ द चैप्टर, और उसके बाद उसने नोबेल प्राइज जो है लिटरेचर में 1932 में हासिल किया या जीता। Introduction of Quality by John Galsworthy. The story begins with the descriptions of down-to-earth boot shop belonging to the Gessler brothers, who were not merely traders but craftsmen skilled in the art of fine board making. Story start होती है इस वाक्य से जो नीचे डाउन टू अर्थ बोट दुकान होता है जो ग्लेसलर ब्रदर्स से ताल्लुक रखती है, जो सिर्फ ट्रेडर ही नहीं बल्कि वो क्राफ्ट्समैन भी होते हैं, जो जिनका हुनर होता है बोट बनाने में और उम्दा बोट बनाने में। Once the narrator went into the shop to order a pair of Russian leather boot and was presented with a fine piece of golden brown leather which would be used to make his boot fitted to perfection. And this one time the narrator complained of his boot having cracked. एक दफा narrator दुकान पे जाता है और ऑर्डर करता है रशियन लेदर बूट के 2 जोड़े, और उसको पेश किया जाता है एक बहुत अच्छा गोल्डन ब्राउन लेदर जो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बूटों के लिए उसको फिट करने के लिए मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस पर नैरेटर कंप्लेंट करता है कि उसके बूट जो है वो क्रैक हो चुके हैं, उनमें दरार आ चुकी है। The complaint was met with a mocked silence, after which the Gassler asked the narrator to send back the shoes for fixing, adding that he would not be charged for the boot if they were beyond repair. अब आगे क्या बोलता है?
Welcome to Home Classes, 11th English, jkbose, Prose, Unit 4, Quality by Galsworthy. Introduction about author. John Galsworthy, born in August 1867, 31st January 1933, was an English novelist, playwright, and notable work include the Proust saga 1906-1921 and its sequel, A Modern Comedy, and End of the Chapter. He won the Nobel Prize in Literature in 1932. गैल्सवर्थी 14 जून 1867 में पैदा हुआ। 31 जनवरी 1933 में दुनिया से चल बसा। इंग्लिश नॉवेलिस्ट था और ड्रामा निगार भी था। नोटेबल वर्क जो शामिल है वो है फ्रॉस्टी सेगा जो 1906 से लेकर 1921 तक उसने लिखा और इसका स्क्वेल भी दिया जिसमें मॉडर्न कॉमेडी और एंड ऑफ द चैप्टर है और उसने नोबेल प्राइज जीता लिटरेचर में 1932 में। Introduction of the Quality by John Galsworthy. The story begins with the descriptions of down to earth boot shop belonging to the Gessler's brother, who were not merely traders but craftsmen skilled in the art of fine boat making. Story start होती है इस वाक़ात से जो डाउनटाउन बोट शॉप होता है गैसलर ब्रदर से उसका ताल्लुक होता है और जो सिर्फ न ही तजारत करने वाले होते हैं बल्कि वो क्राफ्ट्समैन होते हैं और जिनका स्किल होता है एक उम्दा बोट बनाने में। एक बार नैरेटर जो है शॉप में चला जाता है और ऑर्डर देता है या एक बार ऑथर जो है शॉप में गया और ऑर्डर दिया उसने रशियन लीथर बोट के जोड़े का और वहां पे उसको पेश किया गया एक फाइन पीस ऑफ गोल्डन लीथर और जो इस्तेमाल किया गया उसके बूट की मुकम्मल फिटिंग करने के लिए। तो ये एक बार जो है का जिक्र है जब नैरेटर कंप्लेन करता है उसके बूटों का कि वो क्रैक हो चुके हैं। Once the narrator went to the shop to order a pair of Russian leather boots and was presented with a fine piece of golden brown leather which would be used to make his boot fitted to perfection. This one time the narrator complained of his boot having cracked. The complaint was met with a flummoxed silence, after which the Mr. Gessler asked the narrator to send back the shoes for fixing and adding that he would not be charged more if they were beyond repair. जब ये कंप्लेन करता है और वो बिल्कुल खामोशी से सुनता है या खामोशी अख्तियार करता है उसके बाद मिस्टर गैसलर उसको बोलता है कि वो अपने बोटों को यहाँ फिक्सिंग के लिए या रिपेयरिंग के लिए यहाँ भेज दे और वो इसमें ये भी शामिल करता है कि उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर उसके बोट में कोई जो है रिपेयरिंग का काम हो। During one of his visits to the Gassler shop, the narrator absent-mindedly wore boots that he had brought from a large boot firm. Mr. Gassler recognized at once that the boots worn by the narrator were not the fruit of his craftsmanship, pointing out the flaws in its making. दूसरी बार जब उसने विजिट किया गैसलर शॉप पे तो नैरेटर की एब्सेंट माइंडेड की वजह से उसने बूट पहने हुए थे जो उसने लार्ज बूट फर्म से लाया हुआ था। मिस्टर गैसलर ने उसकी पहचान की।
मिस्टर गैसलर ने उसकी पहचान की और एकदम से उसकी पहचान की और वो बोर्ड जो है वो फटा हुआ था जो नैरेटर ने वहां लाया हुआ था और कहा कि ये हमारे क्राफ्टमैन या हमारे इस हुनर का हिस्सा नहीं है और उसमें जो गलतियां थी उसको जो है उनकी तरफ इशारा करते हुए जो बनाने में उसमें जो है कमी रह गई थी यानी कि उसकी तरफ इशारा करते हुए उसने कहा कि ये हमारी दुकान का जूता नहीं है या हमारी हुनर का बनाया हुआ जूता नहीं है। It is at this juncture that Mr. Gassler reveals to the narrator how difficult it is for him and his brother to sustain their small business of the uh, bespoke handmade artisan's board during the times when mass productions and the relent, re, sorry, relentless advertisings were tugging away all the clients. तो इस मरहले पे मिस्टर गैसलर ने नैरेटर से कहा कि कितना मुश्किल हो जाता है इस्तेमाल से बिजनेस को जो है आगे बढ़ाना जिसमें हाथ से बनाई हुई चीजें होती है और जब मास प्रोडक्शन काफी बढ़ गया है और इसमें ताशा जो है एडवर्टाइजिंग जो है वो आई हुई है और ये तमाम एडवर्टाइजिंग या मशहूरियात जो है वो क्लाइंट को यहाँ से भगा के ले जाते हैं। The next time the narrator visited the store was after 2 years to find that the store size had been reduced to half in order to curb expenses. तो जब दूसरी बार नैरेटर ने फिर दौरा किया स्टोर का तो उसने देखा 2 साल के बाद जब उसने दौरा किया तो उसने देखा वहां पे स्टोर का साइज कम हो चुका था और उसका आधा ही हिस्सा रह गया था और उसके आर्डर भी जो है वो कम हो गए थे क्योंकि जो कर्ब था या जो मटेरियल था वो काफी एक्सपेंसिव था यानी कि जो जिस मटेरियल से वो बनाते थे उसमें काफी ज्यादा जो है वो कीमत बढ़ चुकी थी। And during the next visit, he found that Gessler brothers was dead and not being able to bear the losses the business was incurring. तो जब फिर से उसने विजिट किया तो वहां पे पाया कि गैसलर ब्रदर जो उसका बड़ा भाई था वो मर चुका था और वो उसका नुकसान जो है बर्दाश्त न कर सका था और बिजनेस जो है एनरेकर हो चुका था। इस हिसाब से उनका जो है वो क्या बोलते हैं उसमें एरिकर मीन्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका था उसमें काफी ज्यादा वो मतलब जो है एक्सपेंसेस आ चुके थे। Narrator ordered the several pairs that time and the quality of the finished boot were better than ever. और वहां पे नैरेटर ने बहुत सारे जो है जूते के जोड़ों का ऑर्डर दिया उस वक्त तो जो क्वालिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी यानी कि पहले से काफी ज्यादा अच्छी थी। The next visit narrator paid to the shop was after a year and this time around Mr. Gassler looked frail and old. दूसरी बार जब उसने विजिट किया तो उस वक्त जो क्या बोलते हैं कि राइटर था वो काफी बूढ़ा हो चुका था और बूढ़ा भी हो चुका था और जो है फ्रेल था। फ्रेल का मतलब होता है काफी कमजोर था यानी कि काफी ज्यादा जो है वो कमजोर था। उसके बाद the time around the order took longer to come but the quality was even better. A week later the narrator wished to pay Mr. Gassler a visit to tell him how wonderful his boot were. वक्त गुजरा और हफ्ते के बाद जो है उसने फिर सोचा कि वो जो है वो वहां पे विजिट करेगा नैरेटर
उसकी ख्वाहिश थी कि वो मिस्टर गैस्लर के पास जाएगा और उसको बोलेगा कि उसके जूते कितने अच्छे थे। However, upon reaching the stores, he found that the shop had been occupied by another company and that Mr. Gassler was dead, having died of slow starvation. ताहम जब वो दुकान पे पहुंचा या स्टोर पे पहुंचा तो उसने वहां पे मालूम किया कि शॉप जो है वो किसी और कंपनी ने ऑक्युपाई किया है या उस पर कब्जा किया है। मिस्टर गैस्लर मर चुका है और वो फाके से मर चुका है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता फाके का शिकार हो चुका है। The owner of the new store reveals that during his last day, Mr. Gassler spent all his time laboriously making wood, hardly eating, and spending all the money on a rent and leather. Owner के जो है मकान मालिक या दुकान के मालिक ने ये इंकशाफ किया या ये जाहिर किया कि उसके आखिरी दिनों में मिस्टर गैसलर ने तमाम जो पैसा है और जो ताकत है वो बोर्ड बनाने पे सर्फ की और हल्दी वो खाता था और सारे जो पैसे उसने स्पेंड किए रेंट पे और चमड़े पे। This news saddens the narrator deeply and leaves the store with tears in his eyes. तो इस तरीके से ये खबर जो है नैरेटर को काफी गहरी जो है सदमा दे गई और उसने स्टोर जो है वो वहां से वापस मुड़ा या स्टोर से जब वापस मुड़ा तो उसकी आंखों में आंसू थे। Outline of the Quality by John Galsworthy. This quality summary explains in detail the events that take place in the story. तो ये समरी जो है बयान करती है उन वाक़ात को जो स्टोरी में आ चुके हैं। The narrator has been acquainted to the Gassler brothers from time of his youth, for his father was baron of the shoemakers. Narrator इसको बहुत पहले से जानता था या इसकी पहचान बहुत पहले से था जब वो जवान हुआ करता था और उसके बाप यानी कि गैस्लर के बाप जो है वो शूज बनाया करते थे, वो वहां के सरदार थे शूज बनाने में। The two brothers occupy a no-frill stores in one fashionable West End area. तो दो भाइयों ने इस स्टोर को जो है वो यानी कि ऑक्युपाई किया हुआ था जो वेस्ट एरिया में था, उस एरिया में उन्होंने जो है वो इसको जो है ऑक्युपाई किया हुआ था और इसकी सजावट भी की थी। नहीं, इसकी सजावट नहीं की थी। क्या कहता है? द टू ब्रदर ऑक्युपाई, इन्होंने जो है ऑक्युपाई किया था या इस पे कब्जा किया था अ नो फ्रिल स्टोर। और फ्रिल का क्या मतलब होता है? जिसमें सजावट ना हो। नो फ्रिल स्टोर, उसमें कोई सजावट नहीं थी। और वन फैशनेबल वेस्ट एंड एरिया, और वेस्ट एंड एरिया वो फैशनेबल एरिया था, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने अपने स्टोर में कोई भी जो है वो नहीं की हुई थी। आगे बढ़ेंगे। It was a simple store without having any guard, signage, or advertising. Signage or advertising and they only look custom order. वो custom order and making unique booths according to the feet of each client. तो ये एक सादा सा स्टोर था, इसमें कोई भी गार्ड नहीं था, गार्ड सिग्नैग नहीं था। यानी कि कोई जब भी कोई बड़ा दुकान होता है ना, उसमें गार्ड होते हैं, उसमें हिफाजत करने वाले होते हैं, और इसकी कोई भी एडवर्टाइजिंग नहीं थी। ये कस्टम के ऑर्डर को देखता था और फिर एक अजीब किस्म के जो है वो बूट उनके फीट के मुताबिक, जो क्लाइंट के फीट या कस्टमर के फीट होते थे, जो
पाँव होते थे उनके मुताबिक वो जूता बनाया करते थे. Their store front was humble and displaying only a few pair of boots, as if to declare to the world that they did not subscribe to mass production. उनके स्टोर जो फ्रंट था वो हम्बल था और वो ये बयान करता था, डिस्प्ले का मतलब बयान करता था या बोलता था या वहां पे लगे हुए होते थे कुछ ही पेयर यानी फ्यू पेयर ऑफ बूट, कुछ चंद ही जोड़े बूटों के, ये बताने के लिए दुनिया को कि वो उन्होंने मास प्रोडक्शन को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है. As the narrator grows older, he realizes that Gessler brothers were not just shoemakers, but expert craftsmen, and that their shoes were nothing short of a work of art. जो ही नैरेटर बड़ा हो गया और उसने गैसलर ब्रदर को महसूस किया कि उनकी जूते बनाने का जो तरीका है वो ना ही सिर्फ जो है वो एक्सपर्ट है बल्कि क्राफ्ट्समैन भी है और उनके जूते बनाने का जो है वो वर्क बहुत ही अच्छा है और वो जो है बिल्कुल उनमें शॉर्ट जो है वर्क नहीं है बल्कि वो एक बहुत अच्छा है, उनमें आर्ट बहुत ही अच्छे तरीके का आर्ट मौजूद है या हुनर मौजूद है. While describing the young Gassler brothers, the narrator said that his yellow face and the neat fold of skin slanting down his cheek, along with his sardonic voice, and it seems as if were himself made of leather, and his brother looked just like him, only pale. अब क्या कहता है, जब वो उसके यंग ब्रदर गैसलर के यंग ब्रदर या बड़े भाई को जो है वो बयान कर रहा होता है तो नैरेटर बोलता है उसका जो चेहरा है वो जर्द चेहरा है और उसका जो है वो सिकन यानी कि क्या बोलता है कि सलाटिंग. अब सलाटिंग का क्या मतलब होता है, जो झुकाव, उसका स्किन का झुकाव यानी कि उसकी चमड़ी का झुकाव जो है वो उसकी चीक की तरफ था, उसके गालों की तरफ था. along with his sardonic voice, और उसकी जो आवाज थी वो sardonic थी. क्या थी? sardonic यानी कि उसकी आवाज जो थी वो sardonic थी. sardonic का क्या मतलब होता है, जिसमें वो मतलब वो क्या बोलते हैं कि एक किस्म की मसनवी तरीके की आवाज, जो मतलब बना की आवाज, बनाना जिसको हम बनावट का भी बोलते हैं तो या मसनवी आवाज हम कह सकते हैं, वो थी. और वो आवाज ऐसे बनाती थी उसको जैसे कि वो खुद ही चमड़े का बना हुआ होता है और उसका ब्रदर जो है वो उसकी तरह ही जो है वो जरद दिखता था. पीलर मींस जरद दिखता था. The narrator then goes on to describe how entering the Gassler brothers' shop was akin to entering a church, where the client had to wait patiently on the wooden chair for the masters to do their work. अब क्या कहता है, नैरेटर जो है बयान करता है कि वो गैसलर ब्रदर के अंदर शॉप में कैसे जाते थे, शॉप के अंदर जो है वो कैसे जाते थे. उसमें जो है वो मतलब सामान कैसा था, वो एक हम शक्ल जैसे जो है वो उसकी ब्रदर्स की जो वो दुकान थी, जैसे कि वो उनकी दुकान थी वैसे ही जो है वो दिखते थे. तो वहां अंदर ऐसे जाता था जैसे कि चर्च में. तो वहां पे क्लाइंट क्या करता था, वो वेट करता था. एक वुडन चेयर थी वहां पे, लकड़ी की कुर्सी, उस पे बैठ के और उनकी आर्ट का तमाशा देख रहा था. यानी कि मास्टर्स टू डू देयर आर्ट का मतलब उनकी आर्ट का तमाशा देखता था. मास्टर मीन्स हुनर हासिल करना, यानी कि मालिक बनना, उनके हुनरों का मालिक बनता था वो, इन शॉर्ट. यानी कि इसका ये मतलब है कि वो जो है तमाशा देखता था. Wood would be ordered, but foot size would be careful and gleaned to touch, and the client would be shown
the leather piece that would go into the making of a perfectly fitted boot. जब बूटों का ऑर्डर दिया जाता था तो पाँव के साइजों का अच्छी तरह से मुआवजा किया जाता था और उनको मेजर किया जाता था और देखा जाता था टच करने से, और फिर क्लाइंट को दिखाया जाता था वो चमड़े का पीस जिस पीस से वो उनके फिटेड जूते जो है बनाने होते थे। On one memorable visit, the narrator explained to the younger Gassler brothers that his boot had cracked. तो एक बार जब यादगार विजिट जब वो करता है तो वहां पे वो नैरेटर यंगर गैसलर ब्रदर से बोलता है कि जो जूते उसने उनकी दुकान से लिए थे वो अब क्रैक हो चुके हैं। This complaint bewildered the skilled craftsman as if it was impossible for any of his product to have imperfection. तो ये कंप्लेन जो है उसको काफी हद तक बहुत जो है वो डरावनी सी लगी, और ऐसा कि स्किल्ड मैन वो अपने आप को जो समझता था कि ये इम्पॉसिबल है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट हो जिसमें इम्परफेक्शन हो, जो मुकम्मल ना हो, जिसमें क्रैकिंग आ जाए। However, with the great ingenuity, Mr. Gessler asked the narrator to send back the shoes for repair, peeling, with which he said he had refund the amount charged. ताहम उसने बड़ी आइजाना तरीके से कहा, यानी कि मिस्टर गैसलर ने बड़ी आइजाना तरीके से कहा नैरेटर को कि वो जूते को वापस लाए रिपेयर के लिए, और उसमें जो चार्ज लगेगा वो भी उसने नहीं देना है। Another memorable visit of the narrator was one which he entered the shop wearing boots purchased by one of the bigger companies. और दूसरी यादगार जो विजिट है नैरेटर के लिए वो ये है कि जब उसने जूते लिए हुए थे जो उसने बिगर कंपनी से परचेज किए हुए होते थे, वो जूते लगाकर वहां पे वो गया था गैसलर शॉप पे। It was during this visit that the narrator got to know about the Mr. Gassler's contempt for the larger boot making companies that did away with the craftsmanship of the trades in the name of mass production, trading qualities with an array of advertising gimmicks to win the client. अब इस दरमियान में जो विजिट उसने किया तो वहां पे मिस्टर गैसलर ने उसको बोला लालच दी और बोला कि लार्ज बोर्ड बनाने वालों की कंपनी जो है वो क्राफ्ट्समैन के ट्रेड को जो है वो क्या करते हैं, यानी कि वो समझते नहीं है, वो क्या यानी कि जो मास प्रोडक्शन होती है उसके नाम पे ट्रेडिंग क्वालिटी जो है वो बहुत कम होती है और वो इस हिसाब से जो है वो क्लाइंट को विन करते हैं, लेकिन हकीकत में उनकी जो क्वालिटी होती है वो जो है काफी हद तक कम होती है, उनमें क्वालिटी होती ही नहीं है। यानी कि साफ आराई, साफ बस्तगी जिसमें एरे का इसने इस्तेमाल किया है वो वहां पे क्वालिटी जो है वो ट्रेडिंग क्वालिटी विद एन एरे ऑफ एडवर्टाइजिंग, यानी साफ आराई की क्वालिटी जो है वो क्या होती है, ग्रिम सिक होती है। ग्रिम सिक, आप इस ग्रिम सिक को अपने जो है कॉपी पे लिख भी सकते हैं। सॉरी, ये गिम मिक है, मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रहा था, गिमिक। तो गिमिक क्या होता है, गिमिक का मतलब होता है अनोखा, यानी कि धोखा, यानी कि वो क्या करते हैं, उसकी साफ आराई तो होती नहीं है क्वालिटी की, तो वो उनके साथ धोखा करते हैं, तो इस हिसाब से वो अपने क्लाइंट को विन करते हैं, क्लाइंट को जूते वो जीत जाते हैं या क्लाइंट को ले जाते हैं यहाँ से। It was also during this meeting that then become aware of the Gassler brothers' travels of sustaining a small
bespoke business, right? Bespoke business. Of the handmade artisanal goods, when the large companies were luring away their clients on the dent of shallow advertising. अब क्या बोलता है यहाँ पे, उस विजिट के दौरान में उसने उसको ये भी बोला, क्या बोला, ये भी बोला कि नैरेटर को ये भी बोला, या नैरेटर ये जान गया कि उसकी मामूली सी जो बिजनेस है, जो मतलब बिशॉप बिजनेस है, यानी कि जो वो हुक्म उसको दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है, उसका जो बिजनेस है, वो जो हाथ से बनाता है, वो वाला बिजनेस जो है, उसके बारे में वो जो है अवेयर हो गया नैरेटर। तो उसने ये भी बोला कि जब बड़ी कंपनी जो है वो उनको जो है मतलब वो क्या करते हैं, सेड्यूस करते हैं, ल्यूर करते हैं उनके क्लाइंट को, और वहां से वो जो है वो चले जाते हैं। तो वो कैसे ल्यूर करते हैं, उनकी जो मतलब जो खाली एडवर्टाइज होती है, और उनकी वजह से वो वहां से भाग जाते हैं। The ice-cold contempt in Mr. Gassler's voice made the narrator order multiple pairs of shoes, so much so that he had no occasions to visit their stores for the next 2 years. तो ये जो ice cold contempt था, ice cold contempt, आप इसको भी अपनी नोटबुक पे लिख सकते हैं, अपनी इसको मतलब अपनी वोकेबलरी को बढ़ाने के लिए। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है हकारत, आइस कोल्ड हकारत, आइस कोल्ड यानी कि जो ठंडी सी हकारत थी या तागीर थी, उसने गैसलर की वॉइस को जो है, गैसलर की जो वॉइस है, उसने नैरेटर को जो है ये मजबूर कर दिया कि वो यानी कि बहुत सारे जोड़े बूटों के ऑर्डर करे, इस लिए कि वो बार बार उसकी दुकान पे विजिट ना करे, और 2 साल के लिए वो उन जोड़ों को ही लगाए। After 2 years, the narrator go back to the store and find that one half of the store has been occupied by another company. जब 2 साल के बाद वो चला जाता है तो वो देखता है कि उसका आधा सा पोर्शन जो है वो कंपनी ने ऑक्यूपाई किया हुआ होता है। The narrator later learned that this downsizing had to happen because running the shop was turning out to be too expensive. तो narrator ने बाद में ये भी जाना कि इसकी कमी जो इसने जो मतलब कम दुकान किया है, इसकी वजह ये है कि दुकान की जो कीमतें हैं वो ज़्यादा बढ़ गई हैं और दुकान को अब चलाना काफ़ी मुश्किल है। दूसरी बार जब नैरेटर फिर दुकान पे जाता है और the next time the narrator goes to the shop, an older looking Mr. Gassler informs him that unable to handle the losses their business was incurring and the elder brother had died. दूसरी बार वो फिर जब दुकान पे जाता है और बूढ़े से मिस्टर गैसलर उसको ये बोलता है कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है इसकी भरपाई करना, बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है और उसका भाई भी मर चुका है। This time the ordered boot took a long time to come, but their quality was better than before. लेकिन इस वक्त जो ऑर्डर किए हुए जूते थे वो काफ़ी देर से आए, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी पहले वालों से। It was only after a year that narrator visited Gassler's shop to find that Mr. Gassler had aged rapidly, looking frail and weak. और दूसरी बार यानी कि साल के बाद जब वो फिर से विजिट करता है तो उस वक्त मिस्टर गैसलर
काफी कमजोर दिखाई देता है और काफी जो है वो कमजोर दिखाई देता है और बूढ़ा दिखाई देता है. However, despite the aging, the man still knew his trade well and went about the task of measuring the narrator's foot for a fresh piece. और ताहम उसकी उम्र के जो है उसकी उम्र इतनी होने के बावजूद भी वो आदमी ट्रेड में अपनी बहुत अच्छा नुमाया काम दिखा रहा होता है और फिर वो नैरेटर के जो है पाँव को अच्छी तरह से वो मापता है एक फ्रेश पीस से. This time the boot took even longer to come, but their quality was better than ever. इस वक्त भी जूते काफी देर से आए, लेकिन उनकी जो क्वालिटी थी पहले वाले जूतों से काफी ज्यादा अच्छी थी. A week later, the narrator decided to pay Mr. Gassler a visit to compliment him on how wonderful his latest set of boot had turned out. तो दूसरा अब हफ्ते के बाद वो फिर मिस्टर गैसलर के पास जाना चाहता था और उसको कहना चाहता था कि उसके जूते बहुत ही अच्छे बने हैं पहले से और कितने अच्छे जूते बने हैं. However, upon reaching the stores, the narrator was bewildered to see that the store of the Gessler brother had been occupied by some other companies. Hi. अब क्या बोलता है? कहता है कि दूसरी बार जब वो स्टोर पे पहुंचा तो वो घबरा गया, डर सा गया ये देख कर के स्टोर गैसलर ब्रदर का जो स्टोर है वो किसी और कंपनी ने लिया हुआ है. बेविल्डर्ड का मतलब होता है घबरा जाना, डर जाना. The new owner tried to assure the narrator that they were equipped to offer him any board he wanted, but the narrator insisted on knowing what had happened to Mr. Gessler. Upon further inquiry, the narrator found out that Mr. Gessler had died of slow starvation. जब वहां पे पहुंचा तो नए ओनर ने उसको ये बावर करवाया नैरेटर को कि वो इस काबिल हैं कि वो उसको कोई भी जूता दे सकता है जो वो चाहता है, लेकिन नैरेटर ने इसरार किया ये जानने पर कि मिस्टर गैसलर को क्या हुआ. जब उसने आगे इंक्वायरी की तो नैरेटर को पाया और नैरेटर ने ये मालूम किया कि मिस्टर गैसलर जो है वो फाका कशी की वजह से या आस्ता आस्ता फाका कशी की वजह से मर चुका था. The new company owner disclosed to the narrator how Mr. Gassler barely did anything apart from making boots, not even setting aside time to eat. उसने कहा कि जो नई कंपनी है उसने ये राज खोल दिया नैरेटर को कि मिस्टर गैसलर जो है तकरीबन हर काम करता था और बूट बनाता था, लेकिन उसको जो है वो खाने का टाइम नहीं मिलता था. All his money went into the rent and to purchase the fine leathers, leaving very little for basic sustenance. लेकिन उसने तमाम पैसे जो है वो किराए पे दिए और अच्छा चमड़ा लेने के लिए उसने पैसे सर्व किए और अपने लिए या अपने बेसिक जो सर्वाइव है उसके लिए उसने जो है कुछ नहीं छोड़ा या थोड़ा सा छोड़ा. It was a tough business conditions that had finally drawn the life out of Mr. Gessler, an expert craftsman of wood. और ये काफी खतरनाक या सख्त बिजनेस कंडीशंस थी जिसने आखिरकार मिस्टर गैसलर को मार दिया जो एक एक्सपर्ट क्राफ्टमैन वुड का था. Both men agreed that Mr. Gessler was one of the kind, and when it came to boot making artistry, तो दोनों आदमी इस बात पे रज़ामंद हो गए कि मिस्टर गैसलर एक मेहरबान आदमी था और जब वो बूट एक जो है हुनर से बनाता था.
And the narrator left the store deeply saddened by the loss of such a great individual who starved for equality during a time when the world was scrambling for the profit and gains. तो इस बार नैरेटर बड़ा उदास सा हो गया और इस गम से कि बहुत बड़ा इनफरादी आदमी जिसने अपने आप को मार दिया और फाके से मार दिया सिर्फ क्वालिटी के पीछे दौड़ते हुए, जबकि दुनिया में आज ऐसे लोग हैं जो है अपने प्रॉफिट और गेन्स के लिए जो है दौड़ रहे होते हैं। Critical appreciation of the quality. The plot construct of a short story is fluid, with the narrator's visit to the Gessler's brother's shop forming the main block of the story. जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन स्टोरी शॉर्ट स्टोरी का है वो एक फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है। अब फ्लूइड का क्या मतलब है यहाँ पे? फ्लूइड का मतलब यहाँ पे एक जो है यानी कि एक सलाहियत है, बोलने की सलाहियत। जैसे फ्लूइड जो है वो रस होता है, लेकिन यहाँ पे एक बोलने की सलाहियत है। नैरेटर जब विजिट करता है गैसलर ब्रदर शॉप पे और वो जो है मैन ब्लॉक बन जाता है स्टोरी का। During each of the narrator's visit, we find out something new about the Gasslers and his trade. जब वो विजिट करता था, उसने बहुत सारे विजिट किए और जब वो विजिट करता था तो हमने पाया कि गैसलर ब्रदर का ट्रेड जो है उसमें नया होता है। During first visit, the narrator got to know about the Gessler brothers' commitment to the art of making custom handmade boots and how they purchased the best leather available for their boots. पहली विजिट में जो रीडर्स हैं वो ये जानते हैं कि गैसलर ब्रदर का कमिटमेंट जो एक अच्छे बूट बनाने में होता है और जो हाथ से बूट बनाते हैं उसमें जो कमिटमेंट है उसको देखते हैं और वो कैसे परचेज करता है एक अच्छा लीडर जो उसके बूटों के लिए मौजूद वहां पे होता है। However, as the story progresses, we come to know about their improvisement, which only befell on them, for they refused to succumb to capitalized demands for a market that only run on advertising at the cost of quality. अब क्या बोलता है कि जो ही स्टोरी प्रोग्रेस करती है या आगे बढ़ती है तो हम ये जान जाते हैं कि उनकी जो मुफलिसी है, उनकी मुफलिसी के बारे में हम जान जाते हैं जो उन पे पड़ती है और वो रिफ्यूज करते हैं जो है सर झुकाने को या दबने को कैपिटलिस्ट की डिमांड से जो मार्केट में होती है और वो सिर्फ एडवर्टाइजिंग के पीछे दौड़ रहे होते हैं और जो है क्वालिटी उनकी होती ही नहीं। The story is narrated in a first person point of view, and it is through the narrator's commentary that we see the excellent craftsmanship of Gessler brothers and their gradual dimension into the oblivious due to their failure to adapt to the consumerist culture. अब जो स्टोरी है वो फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से बयान की गई और इसमें नैरेटर्स की कमेंट्री जो हम देखते हैं जो एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप गैसलर ब्रदर की है और उनके जो क्या बोलते हैं कि जो आस्ता आस्ता
डायमेंशनिंग है। डायमेंशनिंग है, यानी कि जो डायमेंशन का मतलब होता है जो वो रिड्यूस हो रही है, यानी ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाना, उनके दुकान का ग्रेजुअली रिड्यूस हो जाना, वो मौजूद है किसमें? ओब्लीवियस। ओब्लीवियस क्या होता है? जो ओब्लीवियस, तो ओब्लीवियस क्या होता है? जो फैलाव है, यानी उनके कम होने का जो फैलाव है, वो उनकी फेलियर की जो वो उनका फेलियरपन है, उनका नाकामयाबपन है। किसमें? टू अडेप्ट। अडेप्ट का क्या मतलब होता है? अडेप्ट का मतलब होता है यानी कि वैसा ही करना, मुवाकिफ, उनकी सुमरिस्ट, सॉरी, कंज्यूमरिस्ट, कंज्यूमरिस्ट। सो कंज्यूमरिस्ट क्या है? ये कंज्यूमरिस्ट कल्चर, कंज्यूमरिस्ट कल्चर। मैं इसलिए स्लो बोल रहा हूँ ताकि मुझे आज एक कुमित मिला है जिसमें कहा गया है कि आप थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं, इसलिए। कंज्यूमरिस्ट कल्चर का क्या मतलब होता है? कल्चर तो वो होती है यानी मुफादात, जिसमें मुनाफा हो, तो मुनाफे वाले कल्चर में वो फेल हो चुके थे। वो जो है वहां पे एक्सपेंसिव जो है वो चमड़ा लाते थे और लोगों को देते थे, यानी कि क्वालिटी प्रोडक्ट वो देते थे एज कंपेयर टू अदर। क्वालिटी नहीं देते थे, सिर्फ लोगों को सिड्यूस करते थे अपनी उस जो है वो एडवर्टाइजिंग से। तो फिर क्या होता था? वो खोखली एडवर्टाइजिंग होती थी। The story mostly comprises the descriptions and the commentary of the narrators, interspersed with the dialogues that reveals Mr. Gassler's state of affairs and his view on his trades and book-making market. तो स्टोरी हमें ये जो है वो स्टोरी जो है मोस्टली ये जो है वो बयान करती है, या इसमें ये बयान है कि कमेंट्री जो नैरेटर की थी वो हमें जो डायलॉग जो उसने बोले हुए थे मिस्टर गैस्लर के जो है वो साथ, वो ये इंकशाफ करते हैं कि गैस्लर जो है वो एक बुरी कंडीशन में था और उसके जो मतलब शायकीन थे उसके ट्रेड पर और उसके बूट मार्केट पे जो है वो यानी कि कम होते जा रहे थे। Galsworthy's art of characterizations deserves special mentions in this quality story analysis, for he spanned in this story and intriguing and anti-hero, the younger Mr. Gasslers. Mr. Gasslers can be viewed as an anti-established rebels who, despite incurring severe losses, refuses to relent to mass production. तो यहाँ गैलवर्टी का जो कैरेक्टराइजेशन है वो डिजर्व करते हैं स्पेशल मेंशन इन क्वालिटी में और क्वालिटी स्टोरी में या उसके एनालिसिस में। और क्योंकि उसको प्रेजेंट किया गया है स्टोरी में एक वो साजिश करने वाला या एंटी हीरो यंगर गैसलर ब्रदर, और गैसलर ब्रदर को यहाँ पे बयान किया गया है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रेबल्स है, जिसके बावजूद वो प्रॉफिट कमाने के जो है वो क्या नुकसान करता है, और इसके बावजूद भी यानी नुकसान होने के बावजूद भी वो क्या करता है? वो जो है मास प्रोडक्शन को जो है वो रिफ्यूज कर देता है, यानी कि उसको जो है वो फिर भी जो है वो नहीं चाहता है कि वो जो है मास प्रोडक्शन को फरोग दे।
रिलेंट का मतलब होता है नरम होना या मुलायम होना, यानी अब यहाँ पे वो जो है मतलब वो मास प्रोडक्शन को completely रिफ्यूज कर देता है, इसका ये मतलब है। आगे पढ़ेंगे। At a time when companies were favoring the quantity over quality and advertising over the craftsmanship, Mr. Gessler continued to make the bespoke shoes laboriously crafted by hand as per the unique requirement of each client's faith. उस वक्त तक जब कंपनियां जो है वो क्वालिटी पे जो है कम ध्यान देते थे और क्वांटिटी पे ज्यादा ध्यान देते थे और एडवर्टाइजिंग जो है वो क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो पे करते थे। मिस्टर गैसलर जो है वो जो है मतलब लगातार जूतों को बड़ी मेहनत और अपने स्किल के साथ अपने हाथों से एक यूनिक जरूरत के मुताबिक जो कस्टमरों की होती थी, जो सार्फिन की होती थी, उनके जूतों की या उनके पाँव के जूतों की वो बनाता था। His commitment to the quality and perfectionism drove him toward the extinctions, but till his very last day, he stayed true to his craftsmanship and intriguing, upholding the virtue of quality by John Galsworthy bear a very important message for readers, for it shows that the war between the quality and consumerism, one in which the quality is losing. तो आखिरी उस यानी कि क्वालिटी के कमिटमेंट पे और उसकी जो है वो एक मुकम्मलिज्म पे, यानी कि उसने जो है आखिर उसको खत्म कर दिया और मिस्टर गैसलर को खत्म कर दिया और फिर आखिर यानी कि दिनों में उसने जो है वो एक अच्छे जो है वो तरीके पे रहा अपने क्राफ्ट्समैनशिप पे और जो है यानी कि अपनी उस क्वालिटी की जो है वो क्या बोलते हैं कि एक नेकी पे जो है वो मतलब जो है नमाया शायर रहा, जो गैल्सवर्थ ने यहाँ पे हमें बोला है और उस पे एक मैसेज जो है उसने रीडर्स के लिए छोड़ा हुआ एक काफी इंपॉर्टेंट मैसेज है। इसमें जो ये बताया गया है कि क्वालिटी के दरमियान में और क्वांटिटी के बीच में जो एक जंग चली हुई थी जिसमें क्वालिटी जो है वो यानी कि खोई जा रही थी और क्वांटिटी उभरती जा रही थी। The Industrial Revolution brought in its wake mass production, which was a direct attack on craftsmen like Mr. Gassler, who were artists of their trade. तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने जो है मैस प्रोडक्शन को वेक किया था, मास प्रोडक्शन को फरोग दिया था, जिसमें डायरेक्ट अटैक था क्राफ्ट्समैन पे, जैसे कि मिस्टर गैसलर पे, जो आर्टिस्ट थे अपने जो है वो ट्रेड्स पे, अपनी तजारत में वो काफी ज्यादा आर्टिस्ट थे। Despite being one of the fine bootmaker of his times, Mr. Gassler was forced to improvisement, for he did not care to advertise his product as he wanted the quality of the boot to speak for themselves. इसके बावजूद भी एक बेहतरीन बूट बनाने वाला, उम्दा बूट बनाने वाला अपने वक्त का मिस्टर गैसलर को जो है फोर्स किया गया मुफलिसी की तरफ, और उसने तब भी ये परवाह नहीं की एडवर्टीजमेंट किया कि वो अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट करे, और वो ये चाहता था कि क्वालिटी बूटों की हो और वो खुद ही लोगों से बात करना चाहता था उस क्वालिटी की। This made his business incur heavy losses, for his competitors were producing a low quality product in bulk and stealing all the client through marketing tactics. तो इस तरीके से उसका बिजनेस जो है वो काफी हद तक नुकसान में आ गया, और उसके जो कॉम्पिटिटर्स थे या उसके जो हरीफ थे उन्होंने लो क्वालिटी के प्रोडक्ट जो है वो लाए और तमाम क्लाइंट को
जो है वो मार्केट से भगा कर ले गए खामोशी से। The failure of Mr. Gassler is actually the failure of commitment to quality. तो मिस्टर गैसलर जो है फेल इसलिए हुआ क्योंकि उसने क्वालिटी के साथ मुआहिदा किया हुआ था। His downfall bears the testimony to the downfall of the humanity, for the consumerism has created a world where honest will stop unless they adapt themselves to the shallowness of advertising their wires and louder than the competitors. तो यहाँ पे डाउनफॉल जो है हकीकत में ह्यूमैनिटी का जो है वो बर्दाश्त करना पड़ा, और जिसमें जो एक क्वालिटी थी, जो क्वांटिटी थी, उसने दुनिया में बहुत सारे ऑनेस्ट आर्टिस्टों को जो है वो फाके से मार दिया, जब तक कि वो अपने जो है हुनर पे कायम थे और वो एक खाली एडवर्टाइजिंग करते थे अपने वायर्स की, और जोर जोर से लोरस पे और अपने कॉम्पिटिटर से भी ज्यादा कमाते थे। In the case of Mr. Gassler, the unholy union of the consumerism and advertising won, and his craftsmen and dedications to his trade field. तो इस तरीके से मिस्टर गैसलर ने क्या किया, जो एडवर्टाइजिंग थे उन्होंने जीत लिया, जो कंज्यूमरिज्म थे उन्होंने जो है वो अनहोली तरीके से या गैर जो है वो मतलब गैर जरूरी तरीके से फायदा हासिल किया। लेकिन जो मिस्टर गैसलर था वो अपने डेडिकेशन के साथ और अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के साथ जो है अपने ट्रेड में फेल हुआ। थीम ऑफ द क्वालिटी, इसका थीम क्या है, आइए इस पे बात करते हैं। द overarching theme of the quality by the John Galsworthy is the commitment to quality. One of the massive pitfalls of the mass production was the downgrade in the quality. तो इसकी थीम जो थी वो थी कमिटमेंट, क्वालिटी के साथ कमिटमेंट, और जो मतलब मैस प्रोडक्ट था उसको डाउनग्रेड जो है वो दिखाना क्वालिटी से। Big companies produced product in bulk with no regards to the unique requirement of each client, and in order to compensate for this loss of the quality and to win the client, they purchased the aggressive marketing and advertising to win in a capital game of the consumerism. तो क्या हुआ, बड़ी कंपनियों ने प्रोडक्ट जो है बहुत ज्यादा किए, लेकिन ये ख्याल नहीं रखा क्लाइंट्स का, और इस ऑर्डर को कंपनसेट करने के लिए या इस नुकसान को कंपनसेट करने के लिए, क्वालिटी के नुकसान को कंपनसेट करने के लिए उन्होंने क्लाइंट को विन किया, और उन्होंने प्रैक्टिस एग्रेसिव मार्केटिंग में प्रैक्टिस की और एडवर्टाइजिंग को जीता। कैपिटल गेम यानी कंज्यूमरिज्म के कैपिटल गेम में उनको जीत लिया। Mr. Gassler stood out in this world controlled by the consumerism by staying true to his art and through the sheer dedications to his craftsman. Mr. Gassler जो है वो जो है पक्का रहा कि इस जो है कंज्यूमरिज्म की दुनिया में, और उसने जो है अपनी डेडिकेशन और क्राफ्ट्समैन को अच्छी तरह से इस्तेमाल करके लोगों को जीतने की कोशिश की। He refused to let anybody others than his board make boots for his company. तो उसने किसी भी जो है आदमी को अपने कंपनी के लिए बूट बनाने के लिए जो है वो रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया। And each boot that left his store was unmatched in the quality, for it was product of the hard manual labor as opposed to the blind machinization. सॉरी, अब हर बूट जो है उस स्टोर का जो मैच नहीं होता था क्वालिटी में, और ये प्रोडक्ट होता था हार्ड मैनुअल लेबर का जो ब्लाइंड मशीनिज्म
को जो है वो अपोज्ड कर देता था। The commitment to the quality caused Mr. Gassler's huge losses, but he bears them with the dignity because producing high quality boots were the biggest priority of his life as an artist. लेकिन जो commitment quality की थी मिस्टर गैसलर ने उसमें नुकसान पाया और वो अपने जो है वो शान को बरकरार रखे हुए हाई क्वालिटी के बूट जो है वो उनकी पैदावार बढ़ाते गया और जो उसकी जिंदगी की बहुत बड़ी उसके यानी कि आर्टिस्ट होने की। He refused to stoop so low as to partake in the mad advertising game, for he believed that a product's quality was the prime concern of any trade. तो उसने हमेशा ये इनकार कर दिया कि एडवर्टाइजिंग में कोई भी जो है वो हिस्सा ना ले, ये एक बेवकूफ़ी का काम है। वो यकीन करता था कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो और यही प्राइम कंसर्न है किसी भी ट्रेड का। In the end, we see that the commitment to the quality ultimately drains the life out of an old Mr. Gassler who couldn't make the end meets. लास्ट पे हमने देखा यही जो कमिटमेंट क्वालिटी की थी इसने जो है मिस्टर गैसलर को जो है खत्म कर दिया और इसके जो आखिरी नताइज थे वो बहुत खराब हो गए। However, in the reader's heart, he is the real hero, for he stood true to his quality. To his quality. और इस तरीके से हाँ जो है पढ़ने वालों ने उसको जीत लिया और ये महसूस किया कि वही हीरो है जिसने क्वालिटी को बरकरार रखा। The other quality by the John Galsworthy's themes are dedication, integrity. तो इसमें एक dedication और integrity भी थीम है। Mr. Gessler was dedicated to craftsmanship till his very last days. यानी कि जब आखिरी तक वो dedicated था craftsmanship के साथ। He did nothing other than the make boots, not even setting aside times to eat and attend himself. उसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो बूट बनाता गया और इवन कि उसने खाना भी सही तरीके से नहीं खाया। His integrity shines through the instance when he offered a full refund for one boot that he craved. उसकी इंटीग्रिटी जो है वो मतलब चमक उठी उसकी मिसाल से जब उसने ऑफर किया कि फुल यानी कि वो रिफंड करेगा, मतलब बूट अगर टूट चुका है, अगर क्रैक हो चुका है तो वो उसकी भरपाई कर सकता है। His refusal to advertise his product in a world and thriving on marketing also bears the testimony to his integrity. For the Gessler was a true artist and not a sellout. तो उसने रिफ्यूज किया एडवर्टीजमेंट दुनिया में और उसको आगे छोड़ दिया और उसने कहा इंटीग्रिटी जो है बहुत अच्छी चीज है। और गैसलर के लिए गैसलर तो एक अच्छा जो है वो आर्टिस्ट था, वो सिर्फ जो है काम चलाऊ वाला आर्टिस्ट नहीं था। अब टाइटल ऑफ द स्टोरी क्वालिटी और इसकी जस्टिफिकेशन। Quelity by the John Galsworthy has been aptly titled, for the whole story revolves around the idea that quality should trump everything else in an ideal. अब क्वालिटी गैल्सवर्थी की जो इसमें टाइटल दिया गया वो बहुत मुनासिब टाइटल है क्योंकि सारी स्टोरी जो है वो जो है इस क्वालिटी के गिर्द घूमती है। Story. In the story, we have an old-fashioned bootmaker, Mr. Gessler, who is so skilled
a craftsmanship or craftsman that his boots couldn't be viewed as a work of art. तो इस स्टोरी में हमने एक पुराने जमाने का बोर्ड बनाने वाला मिस्टर गैस्लर देखा जो काफी हुनरमंद था। क्राफ्ट्समैन जो है वो एक क्राफ्ट्समैन था और हुनरमंद था और उसके बोर्ड जो है उनको एक अच्छे काम से वो जो है देखे जा सकते थे। The only thing he cared about was high quality of his boards and he dedicated his entire life to deliver the same. तो वो केयर करता था उसके हाई क्वालिटी बूट के हाई क्वालिटी से वो जो है मतलब काफी ज्यादा मुतासर था और उनकी परवाह करता था और उसने अपने आप को ये पूरी जिंदगी को डिलीवर किया था या डेडिकेट किया था यही काम करने के लिए। No artist true to his salt would be comfortable with the aggressive marketing of their work. यानी कि कोई भी जो आर्टिस्ट है वो अपने जो है नमक हलाल नहीं होगा अपने जो है वो कंफर्ट के लिए, जबकि उसकी एग्रेसिव जो मार्केट है यानी कि एग्रेसिव मार्केटिंग उसके काम की जो है वो क्या है कि वो कंफर्टेबल है। His dedication to the quality remains resolute even when the going got tough and the big companies started stealing his clients through the lucrative advertising and fast production. लेकिन उसकी जो डेडिकेशन थी क्वालिटी की वो पक्की रही जबकि बहुत ज्यादा टफ रही। बहुत सारी बड़ी कंपनीज ने शुरू किया उनके क्लाइंट को चोरना शुरू किया अपनी ल्यूक्रेटिव एडवर्टाइजिंग और फास्ट प्रोडक्शन से। However, this unflinching commitment to the quality comes at a cost, but gradually the downfall of Mr. Gessler begins when his clients started reducing in numbers and he was left with no means of sustenance. तो आखिरकार उसका जो मतलब बेताशा जो माहिदा था क्वालिटी का वो कीमत पा गया और आखिरकार मिस्टर गैस्लर को जो है काफी नुकसान हो गया जबकि उसने अपने कस्टमरों को अपने सार्फिन को खोना शुरू कर दिया और वो कम होते गए और आखिरकार वो जो है बगैर सहारे के रह गया। But even when in his downfall, there was a grace, for he went on to remembered as one of the finest bootmakers of his time. He lived to promote quality and lost his life pursuing quality, and hence it makes perfect sense that this short story about an artisan's bootmaker has been titled Quality. आखिरकार उसका जो है वो गिराव आ गया लेकिन वहां पे ग्रेस थी जिसके लिए वो चला गया था और उसको याद रखा जा सकता था और वो था उसके उम्दा बूट बनाने का जो उसके वक्त के थे। वो अपनी क्वालिटी को प्रमोट करता गया और अपनी जिंदगी को खोता गया, क्वालिटी को बढ़ाता गया और इस तरीके से वो एक मुकम्मल सेंस का आदमी बना जिसमें शॉर्ट स्टोरी उसके आर्टिसन बूट मेकर की जो है उसको टाइटल दिया गया क्वालिटी। अब कंक्लूजन पे आएंगे। Quality by the John Galsworthy is the heart-wrenching tale of an artisan bootmaker who stood true to his principles at a time when the world was running after profit. जब वक़्त जो है दौड़ रहा था किसकी तरफ? प्रॉफिट की तरफ
और क्या हुआ उस वक्त भी गैल्सवर्थी जो है वो क्वालिटी, उसने जो क्वालिटी बयान की, यानी ये स्टोरी जो है मतलब क्वालिटी जो गैल्सवर्थी ने जो है वो बयान की है, ये दी हुई है, वो हार्ट रेंचिंग है। तो हार्ट रेंचिंग का मतलब होता है एक मतलब एक हार्ट रेंचिंग टेल, एक मतलब यानी कि टच करते हुए हार्ट को, दिल को लगने वाली जो है, जो एक आर्टिसन की है जो जूते बनाता था, और वो अपने उसूलों के खिलाफ नहीं गया, उसूलों पे चला, जबकि मुनाफे के पीछे उस वक्त दुनिया दौड़ रही थी। Through the narrator's eye and commentary, we are introduced to this one of a kind board makers whose sole purpose was to deliver high quality board. लेकिन आंखों यानी कि नरेटर की आंखों से जो कमेंट्री उसने बयान की, तो हम यहाँ पे मुतारिफ हुए एक बहुत वफादार बोर्ड बनाने वाले की, जिसका ये मकसद था कि वो हाई क्वालिटी के बोर्ड जो है उनकी पैदावार करे। He had no care for modern day marketing and mass production. उसने नए जदीद दौर की मार्केटिंग और मास प्रोडक्शन के लिए कोई भी जो है वो परवाह उसको नहीं थी। This gradually drew him into a life of destitute. Mr. Gassler bore it with grace, for he was living a life staying true to his art and principles. लेकिन इसने इसको बड़े जो है गहरी खराब मुकद्दर की तरफ मोड़ा जिंदगी में। मिस्टर गैसलर ने इसको बर्दाश्त किया और उसने अपनी जिंदगी को जो है एक अच्छे उसूल और अच्छे जो है आर्ट के लिए जो है जिया। By showing us the life of Mr. Galsworthy is trying to drive home the potent point that the human world has become a cruel place where capitalism will thrive, and those who wish to pursue a steady commitment to the quality of their art will wane away or die. तो इस स्टोरी से मिस्टर गैसलर की जिंदगी से गैल्सवर्थ ये कोशिश करता है हमें घर की तरफ खींचने की, और ये इस पॉइंट इस कमजोर पॉइंट की तरफ जो है वो हमें खींच के ले जाता है, जहाँ पे मतलब एक इंसान दुनिया में क्या हो चुका है, काफी ज्यादा जालिम बन चुका है, और जहाँ पे कैपिटलिज्म जो है वो क्या करती है जो है वो मान लो निचोड़ती है, और जो वो कमिटमेंट उसने जो है वो की है, यानी कि जो भी क्वालिटी की कमिटमेंट करता है या आर्ट की कमिटमेंट करता है, वो जो है क्या करता है, वो रोता है और आखिर मर जाता है। Thank you for watching.